This is DJ Honey. So tell us, what was that track you played? I took dialogues from Gadar. Okay. It's connected to bass and Doom's Night with it. I made a patriotic remix. Okay. And here we have DJ Honey's father. We've come to his house today, and our channel has come to know that you had thrown all of his equipment out about a week ago. Oh, that's not true. It's not? Our This music director's son, not a big singer's son. I'm a normal guy who comes from a very normal family. He always used to say that, I'm going to do something big and I will make all of you proud. But I had no idea, that he's going to become Yo-Yo Honey Singh. When I first saw him, I knew this is the guy. What we were listening to in that era, this was different from that. This was very advanced. Many people have seen fame in their lives. Many people have had popularity. But no one in this world is like Honey Singh. He moved the sort of culture of gravity for Indian pop music. He made Punjabi music cool in the rest of India. There's so many artists today that have so much recognition because of the doors Honey Bhai has opened. He tapped into that aspirational thinking. I'm gonna be a brown guy going abroad, making the same videos that we see black and white American guys doing. His songs were playing at every club, every wedding. When a song plays at a wedding, that's when you know it's a hit. But when a song plays on a tractor, that's when you know you're a hit. Honey has got this one superb thing which nobody else has, which is Yo-Yo Honey Singer. There was a time when Honey Singh used to be India's most popular rapper, but suddenly Honey Singh distanced himself from movies and songs. They should be ashamed of the upbringing they have given him. Honey Singh is the reason why Police rapes said take this about place. his mother and Shah Rukh sister. Khan slapped Honey Singh in fit of anger. Yo-Yo Honey Singh is Honey Singh's wife has accused him of domestic violence. Controversy, a figure of drama, Yo-Yo Honey Singh has disappeared from the Bollywood music scene. Where has Honey Singh disappeared? Honey Singh looks exhausted. Will Honey Singh ever be able to make a comeback? Is he in rehab? Will we ever get to see Honey Singh again? After all, what happened to Honey Singh? Now I'll tell you what happened 9 years ago. No one knows what I'm about to say in front of this camera today. No one knows about it. Oi, you see my veins popping? Zach, the old days are back. And not going back. We'll start with Hai Mera Dil. सात साल के बाद वापस आ रहा हूँ। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था हनी सिंह खत्म हो गया, गाने नहीं चल रहे, मोटा हो गया है, पागल खाने भेज दिया। वहां से आ रहा हूँ। मैंने 7 साल कमरे में बंद करके अपने आप को वेट किया कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं बहन की झूठ, बाहर निकलो, कुछ नहीं होगा, तब जाके बाहर निकलो। दस बजे का अलार्म था मेरा, मैं 1 बजे उठा हूँ और मेरे को फंक्शन करने के लिए ना उठने के बाद 4 घंटे चाहिए। ना मुझसे बात होती है, ना मुझसे किसी से मिला जाता है। मैं बिल्कुल ऐसे फेड इन होता रहता हूँ धीरे धीरे। इट्स ड्यू टू मेडिकेशन ओनली। कल मैं सुबह 5 बजे सोया, उससे पहले भी। तो मेडिकेशन ऐसी है, वो बेसिकली मुझे सुलाती है डीप स्लीप में। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो जब मैं उठता हूँ तो अभी भी उसका असर है। मैं आपको बताऊं, जब मैं बीमार था घर पे, मैंने अपने सारे शूट पोस्टपोन कर दिए थे कि मेरे को वापस फिटनेस पे काम करना है, क्योंकि मेरे गाने वापस आ रहे थे, कम बैक हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन किसी को भी मोटा हनी सिंह नहीं चाहिए।
बीच में ऐसा वक्त आ गया था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी अब बहुत उम्र हो गई है, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं वापस वो लुक्स नहीं दे पाऊँगा जो मेरे फैंस को चाहिए। मैं सिर्फ अच्छे अच्छे गाने बना के देता रहूँ और दाल रोटी कमाता रहूँ, वही ठीक रहेगा। क्योंकि मेरी मेडिकेशन इज हाई ऑन सोडियम एंड लिथियम, तो उस वजह से वाटर रिटेंशन और बंदे का वेट बहुत बढ़ जाता है। लकीली मेडिकेशन मेरी बहुत कम हो गई है और उस वजह से रिजल्ट मिल पा रहा है। While you're on these meds, I hope you're not drinking. ऑलमोस्ट पीता ही नहीं मैं अब। Really? हाँ हाँ सही में। I used to smoke up like this only, 20 joints, 12 joints, 15 joints a day. तो मैंने बड़ा मुश्किल से बैलेंस करके रखा हुआ है। तो I don't want to play with that. I don't want to risk it again, because I don't want that thing back again in my life. आ रही है क्या मेरे तक? These are my favorites. We have to see your abs, please. अरे abs अभी बने ही नहीं यार। पेट है यार, पेट मत दिखाना फिर। पीछे से लो और मिरर से लो। आपको बताऊं, जब मैं बीमार था घर पे तो मैंने 2 साल बिल्कुल काम नहीं किया, लैपटॉप को हाथ तक नहीं लगाया। मैं कहा मेरे से गाने नहीं लिखे जाएंगे, अभी मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर मम्मी बोली कि एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर शुरू कर। फिर मैंने अलग अलग आर्टिस्ट से वोकल्स मंगाने शुरू करे। मुझे लगता है मेरी दोबारा से शुरुआत है एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर। लेट्स गो। मिलिन सेंड मी अ डेमो। जब मैंने गाना सुना तो मेरे को बहुत अच्छी पोटेंशियल लगी। गाना ट्रैप बीट पे था, मैंने नहीं लिखा ये गाना, मैंने सिर्फ रैप लिखा उसका। बट आई थॉट कि लेट्स प्रोड्यूस इट द ओल्ड वे, लाइक हनी सिंह यूज्ड टू प्रोड्यूस इन अ टोल बीट एंड विद सेम काइंड ऑफ मेलोडीज एंड कॉम्स एंड कॉर्ड्स। In 2003 he came to my studio. मैंने उनके गाने सुने and मैंने कहा fuck, this is what I wish to do. This is a dream come true. मतलब जहाँ तक मेरी सोच कहती है तो my hero is Honey Singh. We're on the sets of Paris Ka Trip. This is my first comeback video and I'm very much excited. Yo, Netflix is here. What's happening, motherfuckers? Yo, Honey Singh for life, for life, for life. क्या लेगी बोल दे? 2022 we coming, baby. We are gonna fuck everything, motherfuckers. We coming, damn motherfuckers. Okay. We're shooting Honey's video here in Delhi, so you guys stay tuned because you do not want to miss any of this. It's gonna be hot. पहला वीडियो होगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखी। मैंने सारे गाने 7 महीने डिले किए क्योंकि मैं फिटनेस पे काम कर रहा था। My fitness is ready. I'm gonna shoot 9 music videos in 3 months. There's going to be new collection of songs for my fans. Yo, Honey Singer. Music MG. Paris का ट्रिप लेगी, ट्रिप तू फ्लिप लेगी, मोटे मोटे सिप लेगी, क्या लेगी बोल दे। तमाशी आना छोरा लेगी, शहर में टोरा लेगी, डेट बोरा बोरा लेगी, क्या लेगी। फैंस के लिए खुशखबरी, यो हनी सिंह ने दिल्ली में अपना नया गाना शूट कर लिया है और ये सॉन्ग रिलीज होने के लिए तैयार है। Honey Singh is coming after 5-6 years, so he's trying to come back. So he's doing good. He just like fell through the cracks in between, and now he's coming back. It's great for him. Whether he's gone or he's come back, he's always there. So for me, according to me, he was never gone. He's a good producer, a good deliverer of a certain type of hit, who has a core audience that will stick with him forever. He's reached a level where he can always continue to put out music and he'll fill out shows. You can coast on that for a long time. But Honey's vision is old now. It's outdated. मैं कम से कम 25-26 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। पहले पैदल आता था, फिर साइकिल पे आता था, फिर स्कूटर पे आता था, फिर गाड़ियों में आने लग गया। फाड़ है भाई ये। This thing you can only get in Karampura, man.
This is my place, my city, my hood. ऐसे ही बैठे रहते रहे वेले, फ्री होते थे दोनों, तो दो वेले मिल गए, आपस में कनेक्ट हो गए एकदम। बस फिर तब से लेके अब तक कनेक्शन है हमारा। और स्कूटर लेके आना भाई ने, तो कई बार क्या हुआ, तो स्कूटर साफ नहीं होता था, यहाँ पे कपड़े सूख रहे होते थे, तो मेरे को कहता कपड़ा दे दे, मैं कपड़ा तो है नहीं, वो बैठ जो वहीं से उतार के ना इसे स्कूटर साफ करना और बैठ जाना उसी पे। नमस्ते आंटी। चलो पावे वो किसी का कच्चा है, पावे किसी का तोलिया, पावे किसी नहीं पड़ा। मोजेस भाई, यहाँ पे हम बैठते थे रोज, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, इसको हो गया जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस हो गया तो इसकी छुट्टी हो रही है, यहीं पे घर पे रेस्ट पे। मैंने बियर की बोतल लेकर आनी, यहाँ यूं टका के, यहाँ यूं टका के, यहाँ रखनी सोफे के नीचे, हमने बैठ के जॉन्डिस में इसको बियर पिलानी। मुझे लगता है आपको आज इनको थप्पड़ मारना चाहिए आज। वाओ, हाउ मेनी इयर्स? 25 इयर्स, हाँ? 26 इयर्स। चलो, जो वो वक्त था ना इन गलियों में घूमने का बिंदास, और तब भी मुझे सब जानते थे, आज भी मुझे सब जानते हैं। सर हनी सर, ये पोस्टर लगा के जवान हुई है लड़की आपका। ये वो बच्ची है? हाँ। आ जाओ, चलो फोटो कर लो, फोटो कर लो, फोटो। Oh shit! ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. I love you so much. I really love you so much. All the best for every time, every song. Your song is the every time is the best song. इधर आओ, इधर आओ। Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, glossy lips, उफ़े tricks, baby लग दिया किल्ला। Love you, take care. Oh yeah, दिल करे तेरा बॉम्ब फिगर, blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू। ये घर है जहाँ पे मैं पैदा हुआ और जहाँ पे मैंने अपनी बचपन और जवानी निकाली। मैं यहीं पे बैठता था जब मैं बहुत छोटा होता था, और मम्मी गाना गाती रहती थी और खाना बनाती रहती थी। पापा भी म्यूजिक सुनते ही रहते थे, मतलब वहाँ अलग म्यूजिक चल रहा है बाहर, पापा विनाइल रिकॉर्ड्स यूज़ करते थे पहले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बिगाड़ा, म्यूजिक की तरफ धकेला। अगर वो मेरे को म्यूजिक इतना ना सुनाते, मोहम्मद रफ़ी ना सुनाते, आर.डी. बर्मन ना सुनाते, तो मैं म्यूजिक नहीं सुन पाता, तो मेरे को म्यूजिक की सेंस नहीं आती। बचपन में उसके जो शौक थे वो मेरा भी वही शौक थे ना, तो मैं तो उसके जरिए अपने शौक पूरे करती थी। मैं सिंगर बनना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने नहीं दिया, मैंने अपना सारा एनर्जी उसमें डाल दी कि तुम करो अपने शौक पूरे। ये मना करते थे, मैं चोरी चोरी हेल्प कर देती थी। By looking at this picture, ऐसा लगता है भैया एग्जैक्टली आप पे ही गए हैं। देखो नहीं लगता क्या है गई है। ये आई थिंक भैया के 31st बर्थडे था। I decided to write down 31 reasons why I love you. Well, honestly, this is not for you. This is for your kids, and I really want them to know how amazing their father is. तो जब भी जब भी भैया के बच्चे होंगे, I'm sure they should read this. And the first reason मैंने लिखा है, thank you for giving us this beautiful and dignified life. नहीं? Because we're very proud of him. क्यों पापा? पापा और मेरे बीच में बहुत डिफरेंस आ गया था। तब पापा को लग रहा था ये बीएससी करके उन्हें मेरा बिजनेस देखेगा, जो मुझे करना नहीं था। वो पापा का भी सबसे मुश्किल टाइम था, मेरा भी सबसे मुश्किल टाइम था कि मैं अपने बाप की हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, मुझे म्यूजिक करना था। आई वॉज फोकस्ड, बट उनके लिए भी वो मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। I still remember it was War of DJ Awards. Papa had no idea that Bhaiya is, going for this. We kept waiting till noon bahar, बैठे. And then he came back रात के 2 बजे. All his friends ढोल लेकर आए, and then we were very happy. Very, very सबसे ज्यादा वो हैप्पी हुआ, कह रहे पापा अब तो नहीं मुझे रोकोगे, कह रहे नहीं अब नहीं रोकूंगा, तो चल जी ले अपनी जिंदगी।
2003 में हनी का कमअप था, लाइक ही स्टार्टेड मेकिंग बीट दैट टाइम। क्लब में उसने देखा कि द वे आई रैप, तो मिले, वाइब वाज ग्रेट, चलो जी स्टूडियो चलो। मैं सिर्फ एक म्यूजिक प्रोड्यूसर था। I never wanted to sing, I never wanted to write. मुझे तो लिखने का तरीका भी नहीं पता था। फर्स्ट रिहर्स इट। It's mellow. अभी क्या है कि अभी तेरे वो लिरिक्स दिमाग में नहीं आ रहा, उसको पहले रिहर्स कर ले, फिर उसके बाद यू कैन पुट योर लेवल अप। Okay, do it. ठीक है ना? He's hardworking, really hardworking, really quick. वो आपने CPU लेके आते थे, हाँ। CPU लेके आते थे, अरे man, amazing. भाई वही तो शुरुआत में आता था कि CPU लगा, अलग हाँ सब ठीक है यहीं पे, और कहीं पे भी लगा दो। ये मेरा CPU है जी, जो 2006 से मेरे पास है। इसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है। इसमें मैं एसिड प्रो, फ्रूटी लूप्स, रीजन, प्रोपेलर हेड, क्यूबेस, इन सब पे काम करता था। ये मेरा ऑडी G2 का पहला साउंड कार्ड मैंने ख़रीदा था। जो लोग बच्चे साउंड इंजीनियरिंग को जानते हैं और म्यूजिशियंस हैं, उनको पता होगा कि साउंड कार्ड क्या चीज़ होती है। तो इसी पे मैंने पहली रिकॉर्डिंग्स करी अपनी। तो एक बड़ी पेटी यहाँ पे बड़ी होती थी और उस पे मेरा वो CPU पड़ा होता था और मैंने खड़के ग्लासी यहाँ पे प्रोड्यूस किया बैठे, और यहीं पे मिक्स किया, यहीं पे मास्टरिंग की है उसकी खुद। मैंने गॉट माई फर्स्ट अवार्ड एज अ साउंड इंजीनियर इन 2005। यहीं पे किया मैंने, और मैंने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा। इतनी प्यारा म्यूजिक, सबकी फोन की रिंगटोन हुई थी। मैं शुरुआत में काफ़ी अर्बन स्टाइल के गाने लिखता था जिन्हें कोई गाना नहीं चाहता था। जब मैंने खुद गाना शुरू किया तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ एज अ सोलो इंडिपेंडेंट सिंगर एंड परफॉर्मर। Like the first 4-5 years of his career, he was very quick at seeing how the winds changed and changing with it. So you know he tried that Bhagat Singh thing. He tried the hip hop thing. He tried being an Eminem style gangster rapper for a little bit. Then he went into party rap. Party rap by itself isn't working. The sort of collabs I'm doing with the folks guys are working. How do I bring these together? So then he was like, okay, international villager, I'm going to have an international sound. International Villager in 2011, that sound was totally new for whole India, whole world. You cannot find not even a single hip hop song. You cannot find not even a single house song, techno song, dubstep, whatever. सारी Yo-Yo Honey Singh की sound थी और एक urban sound थी. My friend said, भैया का show है. So do you want to go? I said, let's go. That was my first show or probably concert or any, artist performing. I saw people screaming his name. They wanted to touch him. I was like, oh my God, is this my brother? There's so many people love him. In 2012, online video viewership experienced a notable shift towards mainstream content, with Honey Singh's Brown Rung becoming the most trending video of the year. Music Director Award goes to My favorite, Honey Singh. एक पंजाबी आर्टिस्ट दिल्ली बॉर्न पंजाब कैप्चर करता है, पैन इंडिया बिहार कैप्चर करता है, उड़ीसा कैप्चर करता है, बैक इन चेन्नई जाके परफॉर्म करता है, पंजाबी आर्टिस्ट में कह रहा हूँ, और वहाँ पे चेन्नई वाले प्यार तनु कर दे। हाँ तेरे बाप ने मानना नहीं माना। ओ मेरा ब्याह किसी नाल भी करा दोगे, पर एक सिंगर। अपने पापा को बोल गूगल करके देखे, सुपरस्टार है उनका जो भाई। स्कूल के जमाने का रोमांस, 20 साल के कोर्टशिप के बाद शालिनी तलवार अब हो गई हैं शालिनी सिंह। इस तरह के रिश्ते कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेरे साथ आज वो लड़की आई है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया और सबसे ज्यादा साथ दिया, और जो है मेरी वन एंड ओनली। हनी सिंह शादीशुदा है या हनी सिंह सिंगल है? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ जी, 2 साल से। अच्छा, आपकी शादी हो गई है जी? 2 साल। और जो अखबार में जो खबर छपी थी वो सही थी, इसका मतलब? अच्छा, अखबार में छपी थी। और खबर तो ये भी पक्की है कि अब हनी सिंह का करियर उनकी वाइफ शालिनी ही संभालेगी। तो देखते हैं कि मैनेजर शालिनी हनी सिंह के करियर में क्या-क्या बदलाव लाती है।
saw Honey was at some concert. He had just gotten off stage, like full of energy, and that's the first time I saw Yo-Yo Honey Singer. Oh yeah, oh yeah. Dil kare tera bomb figure. Bomb lagdi शुरू किया मैंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े एक्टर। वैसे बॉलीवुड में आती रोज पिक्चरें पर सुपर हिट पिक्चरों का यो एक्स फैक्टर। जब बॉलीवुड में भी काफी सॉन्ग्स आए, देन वी एक्चुअली रियलाइज कि ही इज मेड हिज नेम देयर, ही इज आउट देयर। कोकोनट में लस्सी मिला के International icon male. Honey Singh. Best music goes to Yo Honey Singer. Please give it up for him. Yo Honey Singh. Yo Honey Singer. वो वक्त आया था, मैंने कहा टाइम है पैसा कमाने का, तो लेट्स डू इट। और फन था, एनर्जी इतनी हाई थी, सक्सेस पहली बार देखा था लाइफ में। इस घर में विंडोज भी नहीं है। नहीं, विंडोज भी नहीं है, जगह ही नहीं है ना। तो 26 years, 24 years. 24 years. You lived in a house without windows. Without windows. But still got dreams. Still got dreams. Still it was too compact कि आंखें खुल के भी शायद मेरी आंखें बंद ही रहती थी और मैं सपने ही देखता रहता था। Yeah. This house is like a train box. Yeah. It's like a train क्या कंपार्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीधा है और यूं खत्म हो जाता है। जब मैं बीमार था, मेरे को इतने सपने आते थे कि मैं उठता ही यहीं से था। मैं उठ जाता था और मुझे लगता था अरे मैं तो नोएडा में हूँ। अरे मेरे को तो लगा कि मैं वहीं सो रहा था, करमपुरा में सो रहा था। मेरे को ऐसे ही सपने आते थे। मेरे को तो कभी लगा ही नहीं मैं यहाँ से कभी निकला हूँ, ना मैं निकल भी नहीं सकता यहाँ से, ना मुझे निकलना है यहाँ से। वही बात है ना कि सब कुछ गोल है, फाइनली इंसान ने घूम के वहीं आना है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कहीं और रह जाऊँ, मैं यहीं आना चाहता हूँ वापस। तो जब मेरी मौत हो तो मुझे इसी क्रिमिनेशन ग्राउंड में लेके जाया जाए। मुझे एक चीज़ समझ में आई इस दुनिया में आने के बाद कि सबसे बड़ा झूठ इंसान की ज़िंदगी का उसकी ज़िंदगी है। लाइफ इज़ अ फॉल्स, इज़ अ लाई। Truth is death, which is committed, which is gonna stay forever. तो सब कुछ टेम्पररी है, तो इसको जी लो। तो मैं इसलिए खुश रहने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। आसपास के लोगों को खुश रखता हूँ, जोक्स क्रैक करता हूँ उल्टे सीधे, गाने बनाता हूँ, डांस करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ। Happiness and joy is what I want to give to this fucking world. जब मैं मर जाऊं उसके बाद लोग कहें हाँ यार इसने जो जिंदगी जी थी मजे में जी के गया है। गजरा पहनाऊंगा किसको? गजरा पहनने वाली नहीं है। गाड़ी में पहनाए। यही है अभी हमारे पास। मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम क्या है? हनी सिंह। हनी सिंह थोड़ी ना है मेरा नाम। यो हनी सिंह। यो हनी सिंह। अभी भी स्मार्ट दिख रहे हो। अभी भी स्मार्ट दिख रहा हूँ। वो बोल रही है अभी भी स्मार्ट दिख रहा हूँ। डाइट पे हो क्या? थोड़े पतले हो गए। हाँ डाइट पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हैवी हो गया था ना। अब वापस बुलाने वाला। आ जाओ वापस। आ गए। आपने बोला कि पतले क्यों होना है, पतले क्यों होना है? Is it really important or you wanted to do it for yourself or for the people? I told you it's for my fans. They're noticing and they're telling डाइट पे हो क्या, पतले हो गए, वापस पहले जैसे हो गए, स्मार्ट दिख रहे हो अभी भी। फिर बोला बीच में आप हैवी हो गए थे। So they follow. हम जा रहे हैं डिज़ाइनर शूट पे, उसके सेट पे।
जो आज है एक फैशन शो का सेटअप। और प्लीज़ मेरे कपड़े देख के हंसना मत, क्योंकि मैं बहुत अजीब सी चीज़ें कर रहा हूँ इस वीडियो में। डिज़ाइनर मेरे कमबैक प्लान का सेकंड सॉन्ग है। आफ्टर पेरिस का ट्रिप इट वाज मोर यंग एंड पेपी, बट डिज़ाइनर इज बैक विद ओल्ड हनी सिंह स्केल। इट्स लाइक ग्रैंड विजुअल्स विद अमेजिंग आर्टिस्ट गुरु रंधावा। इट्स गुरुज आइडिया, और जिसको मैंने अपने म्यूजिक में उतारा और मिहिर ने अपने विजुअल्स में उतार रहा है आज। And me saying that, बना ले मुझे अपना designer. Me also saying that, बना ले मुझे अपना designer. Guru Randhawa in the house. We made this song in 2020. Yeah. Now we're shooting in 22. He waited me to lose weight, to look good. I said, no, but we waited. You waited for us to give us a chance on this music. No way. You waited. I remember I was in my college. भाई का शो देखने गया था, तब शो की टिकट्स नहीं मिली थी, बट मैं भाई को देख के आ गया था। बट आज भाई के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, और साथ के साथ प्राउड फील भी हो रहा है। इस सॉन्ग की डिमांड म्यूजिक था, मैंने इसमें म्यूजिक बनाया, सिर्फ बीट नहीं बनाई, सिर्फ ग्रूव प्रोग्राम नहीं किया। एवरीथिंग आई प्रोग्राम एंड द ड्रॉप स्पेशली टैंग नंग टैंग नंग टैंग नंग टैंग। नशा है ड्रॉप। रिकॉर्ड करिए और क्या देखना चाहते हो तुम लोग? वाइट कलर का कच्चा पाया मैं, देखो वर्साची का। I'm showing my Versace का कच्चा, man. Love it. You guys want to see everything, man. We want to get in, babe. Get in. Love it. मोदिस भाई गाना सुनो, बॉलीवुड। This is fucking Indian music. Why'd you blame motherfucking Yo-Yo Honey Singh only? लोगों ने पसंद किया, तभी तो आज मैं यो-यो हनी सिंह बन गया। ये स्ट्रीट के बच्चे भी मुझे पहचान रहे हैं क्योंकि इन्होंने पसंद किया। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर लालचन लगाया और मेरे को ये बदनाम किया कि ये गंदे गाने गाता है। अगर मैं गंदे गाने गाता होता तो लोग मुझे अपने बहन की शादी में बुलाते परफॉर्म करने को, अपनी बेटी की शादी में परफॉर्म करने को बुलाते। मैं वहाँ पे वो सब गाने गाता हूँ जो मैंने गाए हैं। एना वीना डोप शोप से मारे लेके आंटी पुलिस बुला लेके से लेके एवरीथिंग, एंड दे गो मैड, दे गो वाइल्ड ऑन देम। Are you apologetic about any of it? None of them. None of them. Tell me which is the song that you said is your favorite song? Blue Eyes. Mine too. Yours? Blue Eyes. You all keep saying the same song. What was the one with the Shah Rukh one? Lungi dance, lungi dance. Brown Rang. Who said Brown Rang? Why not? That's my favorite song. That's my favorite too. कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे तेरी सारे मेरे जाऊंगे।